اگر زندگی بدلنا ہے ایک بات زندگی بدل دے سکتی ہے، ایک ہی حدیث زندگی کو بدل دے سکتی ہے۔ اے دیکھیں تولا والو سنو، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، عالم اگر نہ بھی ہو، کوئی معمولی آدمی کوئی نوکر بھی اگر آپ کو کوئی ایسی چیز بتا دے اور آپ اس پر عمل کریں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاتا ہوں۔ حمید الدین بادشاہ، غور سے سنیے گا، دیکھیے ان کی زندگی کیسے بدلی، آخرت کی یاد، آخرت کی تیاری، ان کی زندگی کیسے بدلی۔ حمید الدین، ان کے باپ کا نام تھا سلطان بہاؤالدین۔ باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے پورے 21 سال تک انہوں نے حکومت چلائی۔ حمید الدین ان کے خطور کا ایک باغبان، ایک گارڈن تھا، یہ اپنے باغ میں جاتا تھا، اپنے گارڈن میں جاتا تھا اور وہاں آرام کرتا تھا، دیکھتا تھا۔ اور باغ کے بیچ میں، سنیے، باغ کے بیچ میں ایک شاندار محل بھی تھا۔ تولا والے سنو، باغ کے بیچ میں ایک شاندار محل بھی تھا، اس میں ایک بھابھی، ایک لوٹی رہتی تھی جو بادشاہ کے آنے سے پہلے بستر بچھا دیا کرتی تھی، آرام کا بستر بچھا دیا کرتی تھی اور بادشاہ کر کے اس نرم گرم بستر میں سویا کرتا تھا۔ سنو، ایک دن میرے بھائیوں سنو، اس عورت نے، اس بھابھی نے، اس لوٹی نے بستر کو بچھا دیا، لیکن سوچا بادشاہ روز آتے گے 9 بجے، ابھی تو 9 بجا نہیں ہے، بادشاہ بھی آئیں گے، بستر میں آرام کریں گے، ابھی تو 8:30 بج رہا ہے، چلو کیوں نہ میں تھوڑا سا لیٹ کر کے دیکھتی ہوں کہ بادشاہ کا نرم و گرم بستر کس طرح ہوا کرتا ہے، تھوڑا سا لیٹ کے دیکھ لوں، وہ لوٹی کے لیے تھوڑا سا آرام کرتا ہوں، دیکھ لوں کہ بادشاہ کا بستر کیسا ہوتا ہے۔ آہا، غور سے سنو، سانس لے کر کے سنو، کل سے قرآن و حدیث سن رہے ہیں، اگر اسی واقعے کو آپ نے اپنے دل میں بٹھا لیا میرے بھائیوں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ بیچاری لیٹ گئی، مزدور لیٹ گئی، وہ بیچاری، وہ باندھی، اور بادشاہ کا بستر جو ہے نا، جیسے ہی وہ لیٹی 2 منٹ کے لیے ایسے آنکھ بند کر کے سوچ رہی ہے کہ شاید میں سو گئی، آنکھ بند کر کے وہ خیالوں کی، خوابوں کی دنیا میں ٹہل رہی ہے، آنکھ بند کر کے ایسے دیکھ رہی کہ اس بادشاہ ایسے سوچتے ہیں، بادشاہ ایسے سوچتے ہیں۔ وہ آنکھ جیسے ہی بند کی ہے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، چونکہ وہ کام کرتی تھی، بعد میں تھکی ہوئی تھی، نیند آ گئی، اس کو سو گئی۔ بادشاہ آئین موقع پر پہنچ گیا، وہ تو سو گئی نا، آنکھ لگ گئی اس کی۔ بادشاہ آئین موقع پر پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد ہمیں دیر کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ گستاخ لوگی، یہ میری بانی میرے بستر پہ سو رہی ہے، اس کی بجائے میرے بستر پہ سوئے گی۔ کوڑا اٹھایا، یہ کوڑا نہیں جو آج کل ہمارے پاس ہے، بلکہ وہ چمڑے کا کوڑا ہوتا تھا، چمڑے کا، اٹھایا اور اٹھا کر کے مارا، ایک کوڑا، آنکھ کھل گئی، پھٹاک سے اٹھتی ہے، وہ دوپٹے کو سنبھالتی ہے، سنبھالنے کے بعد کہتی ہے غلطی ہو گئی، سوری، لیکن بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تم کیوں سوئی اس بستر میں؟ وہ کچھ نہیں بول رہی۔ دوسرا کوڑا لگایا، وہ ہنسنے لگی، تیسرا کوڑا مارا بادشاہ نے، وہ اور تیز دل کھلا کر کے ہنسنے لگی۔ 10 کوڑے مارے بادشاہ، 10
10 कोड़े मारने के बाद ऐ नबी तोला वालों, मैंने कहा ना क्या एक ही बात और एक ही वाक़या काफी है इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए, इंसान की जिंदगी में चैन लाने के लिए एक ही वाक़या काफी है। 18 मुकर्रिरों को बुला करके और वो जो रात नींदें बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। गौर से सुनिए, कोड़े के ऊपर कोड़े पर साया जा रहा है बादशाह, और उस बानी उस रानी के जिस्म से खून बह रहा है और उतनी ही तेज वो हस्ती चली जा रही है। आखिरकार बादशाह ने सोचा कम वक्त मैं तुमको सजा देने के लिए मार लगा हूँ, क्या तुम्हें चोट लगी पहुंच लगी है, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है? घोड़ा को जमीन में फेंक दिया और कहा जल्दी बता तू क्यों हंस रही, क्या हंस रही है? अरे 10 घोड़े अगर मैं किसी घोड़े को लगा देता तो घोड़ा भी हिलहिला उठता, तू क्यों हंस रही है, जल्दी बताओ घोड़ा। कहने लगी बादशाह मैं तकलीफ की वजह से नहीं हंस रही हूँ, ये जो खून मेरा बह रहा है, ये ओढ़ने के दुपट्टा जो खून से लथपथ है, इसकी वजह से मैं नहीं हंस रही हूँ। बादशाह मैं इसलिए हंस रही हूँ बादशाह के 5 मिनट, गौर से सुनिए, 5 मिनट तेरे नरम और गरम बिस्तर में, 5 मिनट बादशाह के इस जन्नतनुमा बिस्तर में सोने की सजा अगर है बादशाह तेरी अदालत में ये कोड़े हैं, फिर गौर से सुनो, बात को रिपीट कर रहा हूँ ठेके टोला वालों, गौर से सुनो। वो पानी जवाब दे रही है बादशाह 5 से 10 मिनट तेरे नरमो गरम बिस्तर में सोने की सजा बादशाह अगर तेरी अदालत में कोड़े के ऊपर कोड़े हैं तो रोजाना जो डेली इस बिस्तर में सोता है, इस बिस्तर में आराम करता है, अल्लाह की अदालत में उसका क्या फैसला होगा, अल्लाह की अदालत में उसकी क्या सजा होगी, अल्लाह की अदालत में उसका क्या बदला है, अल्लाह की अदालत में क्या सजा है। ये छोड़ दिया, खामोश किया और कहने लगा कसम खुदा की लोनी सही कह रही है, 5 मिनट की सजा मैंने इसको लहूलुहान कर दिया, 5 मिनट सोने की सजा मैंने इसको लहूलुहान कर दिया, खून से लथपथ हो गई है, लेकिन रोजाना जो मैं सो रहा हूँ इस बिस्तर में, इसकी सजा मुझे अल्लाह क्या देगा आखिरत में। मेरे भाइयों वो लोनी कोई मोल भी नहीं थी, 20,000 और 30,000 डिमांड में करके वो नहीं आई थी, वो कोई बांधी नहीं थी, वो कोई मोल भी आला नहीं थी, बस एक नौकरानी थी, एक खातिमा थी, एक काम करने वाली थी, बाग में पानी देने वाली थी, बादशाह का बिस्तर बिछा दिया करती थी, लेकिन एक जुमले ने बादशाह के दिल को चुभा दिया। बादशाह ने उस बूढ़ी को जमीन में फेंक दिया और फेंकने के बाद बादशाह ने कहा ऐ खातून, ऐ बानी, अब मैं बादशाह से इस्तीफा दे रहा हूँ, जंगल में कहीं चले गए मेरे भाइयों, और पूरी जिंदगी उन्होंने अल्लाह की इबादत में, अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए पूरी जिंदगी उसने गुजार दी। मेरे भाइयों एक ही वाकया इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए काफी है, एक ही वाकया इंसान की जिंदगी में चेंजिंग लाने के लिए काफी है। ये रात भर, ये 2 दिन और ये 18 मौलवियों को सुन करके कोई फायदा नहीं है। अगर आपके अंदर, हमारे अंदर अगर चेंजिंग और तब्दीली नहीं आई तो कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों, शायद पुरानी करीब की इतनी बातें और इस वाक़े को, ये है आखिरत की तैयारी, कैसे सहाबाए किराम आखिरत की तैयारी करते थे। मेरे भाइयों, एक वाक़या और रख दूं, हज़रत उमर ये रात को गश्त
लगाया करते थे। एक बार हजरत उमर पहुंच गए एक गांव में, देखा एक औरत बेचारी बैठी हुई है और बैठने के बाद उसके पास छोटे छोटे बच्चे भिलभिला रहे हैं, रो रहे हैं। जाकर के हजरत उमर बैठ गए। बैठने के बाद पूछा, माँ खातून ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा भूख की वजह से रो रहे हैं। देखिए आखिरत की तैयारी, भूख की वजह से रो रहे हैं। कहा क्या हुआ इनको? कहा पानी में क्या है? उठा के दिखा दिया, कुछ नहीं पानी है। कहा तो ऐसे क्यों कर रही हो? जवाब दिया कि बच्चों को बहला रही हूँ, बच्चों को फुसला रही हूँ कि बेटो रुक जाओ, खाना तैयार हो रहा है, कल मैं कयामत के दिन उमर का गरीबान पकड़ूंगी और लाऊंगी। लेकिन उस औरत को पता नहीं कि ये हजरत उमर है। नेट का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, पहचान लेके यही हजरत उमर है। हजरत उमर दौड़ करके गए, बैतुल माल से खाने पीने का सामान लिए। गुलाम असलम कह रहा है, ऐ अमीरुल मोमिनीन ये सामान मेरे सर पे डाल दीजिए। हजरत उमर ने कहा, कयामत के दिन तुझसे पूछा जाएगा या मुझसे? कहा आपसे। कहा क्यों मेरी बोझ को उठाना चाहता है? कयामत के दिन मेरा बोझ तू उठाएगा या मैं? कहा आप उठाएंगे। कहा क्यों आज मेरा बोझ उठाना चाहता है? हजरत उमर गए, अपने हाथ से रोटी बनवाया, उसके बाद हजरत उमर ने खिलाया। मेरे भाई को देखा आखिरत की तैयारी, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते थे, सिर्फ रोजा नहीं रखते थे। मेरे भाई को और एक चीज मैं आपको बता दूं, नबी की एक इशारे पर, नबी की एक इशारे पर हजरत अबू दहदान अल्लाह के रसूल ने कहा कौन है जो अल्लाह के रास्ते में देगा? हजरत अबू दहदान साहब ने कहा अल्लाह के रसूल, मदीने में मेरे खजूर के 2 बाग हैं, मदीने में मेरे खजूर के 2 गार्डन हैं, अगर आप कहें तो मैं एक अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ, कौन सा दूं? अल्लाह के नबी ने कहा कि तू बेहतर जानता है, कौन सा देगा? कहा अल्लाह के रसूल ऊपर वाले हिस्से में जो मेरा बाग है वो मैं अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ। खजूर के 600 दरख्त लगे हुए थे, 600 दरख्त पूरा का पूरा बाग अल्लाह के रास्ते में दे दिए। ये देखिए आखिरत की तैयारी।